ساری امت کو صحابہ کو آپ نے چھوڑ دیا. اب شرائط جو غلط بات ہوگی بھی اس کے اوپر میں تنقید کروں گا. یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. تنقید کے لیے رہتا, آپ تنقید نہیں کریں گے, آپ تنقید کریں گے. اس لیے بات سنیں, ہم تنقید سننے کے لیے نہیں آئے. کی بات ہوگی تو تنقید ہوگی. جب آپ نے تنقید لفظ بولا تو میں وہی بولوں گا نا. ایسی بات نہیں ہے. بات شروع کریں. ارے بھائی سات منٹ کی رکھنی ہے, 5 کی رکھنی ہے, 10 کی رکھنی ہے. 5 منٹ کی طرح ہونی چاہیے. پہلی دام دستی کر لیں, 7 کر چلو پہلی 7 منٹ نہیں, ویسے 7 کی کر دیں کیونکہ 5 بہت تھوڑا وقت ہے. 7 یہ تو ٹھیک نہیں کر انہیں کو بن جائے گی, وہ ٹائم کنٹرول کرنے والا وہ بتا دے گا. 7 منٹ ہوگا مطلب نہیں سر, 2 گھنٹے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹوٹل ٹائم 2 گھنٹے. 5 منٹ کی تصدیق کریں گے تو آپ 2 گھنٹے وقت دونوں طرف کیسے 5 منٹ جی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی کی بات اگر 7 منٹ اوپر ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں. آپ کو 2 گھنٹے بات کر لیں. جی ٹھیک ہے. جی 2 3 گھنٹے پہلے آپ نے لگا دیے. اس لیے اگر آپ شہر میں کر لیتے تو یہ 3 گھنٹے نہ لگتے. آپ اس لیے لوگوں کا وقت بھی ضائع. اس لیے تو آپ کے سامنے ہے اور آپ کے بتاؤں کہ اس جماعت میں اللہ کی رحمت سے ایسے طالب علم بھی موجود ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کے لیے اب میں آپ سے ملتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے رہیں گے تو سوچ کے ملیں گے. 7 منٹ جو کہیں مرتبہ شام کا ہوا ہے. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اب اچھا نہیں ہے. انشاءاللہ تو آپ بھائی آپ آپ کو 10 منٹ کی بات ہے. ہمیں پھر آپ سے 10 منٹ کی 10 منٹ کی طرف پہلی اور آخری طرف مدعی کی ہوگی اصول مناظرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کم ہوگی. 3 باتیں ہو گئی. اور ہم تو نہیں کرتے کہ آپ آدھے کے لیے ہیں, ہم بھی قبول کرتے ہیں یار. ہم نہیں آپ کے سامنے لے رہے ہیں. آپ نے کہا میں نے قبول کیا. اب میری بات سنیں بھائی, آپ نے پیش کر دیا نا, ہم نے مان لیا. اب میں سب پیش کر رہا ہوں. آپ بھائی 3 شرائط ہوگی ہمیں لکھتی ہے, ہم نے سزا شمار کرنا. بڑی بات ہے کہ چونکہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے 2 اصول ہیں, فرمانے بتا فرمانے رسول. اس لیے جو حدیث پیش کریں گے اس حدیث کا صحیح ہونا اللہ تعالیٰ سے ثابت کریں گے یا نبی پاک سے ثابت کریں گے. امت کے گوار کو پیش نہیں کریں گے. اور ہمارے یہاں 4 اصول ہیں, اس لیے ہم 4 اصولوں کے اندر رہ کر بات کریں گے. ہم چونکہ ائمہ کی اطاعت کو مانتے ہیں تو ہم جو ہے اس کی تفصیل ائمہ کرام سے پیش کر سکتے ہیں. اس لیے یہ 4تھی شرط ہے. مرض کے ساتھ آپ لکھیں باقی رضامندی کی جو شکایت ہوں گی میں دیکھیں پہلے بھی میں عمارت کیا ان سے آپ کے صدر مبارک صاحب سے کہا ہے کہ آپ لفظ غیر مقلد استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم آپ کو وقت وجودی کہیں گے, ہم آپ کو وقت وجودی کہیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ نے آپ کو اہل حدیث کہا ہے نا, ہم اہل حدیث ہیں, ہم آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے. اور رہی بات آپ کی نہیں, رہی بات آپ کی نہیں, آپ کو نہیں مانتے اہل حدیث کو یہ اہم بات ہے. ہم آپ کو اہل سنت نہیں مانتے. اگر اس لیے حدیث نام ہی اس لیے اللہ کی رحمت سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو تفریح میں ڈال دیا ہے. حدیث میں فرق ہے, سنت میں فرق ہے. حدیث یہ ہوتی ہے, سنت یہ ہوتی ہے. آپ بتائیں سنت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے بندوں لوگوں کو پہچان صرف حدیث اور سنت سے دور کرنے کے لیے, حدیث سے دور کرنے کے لیے یہ ڈفرنس کرتی ہے سنت اور ایسی بات کیوں ہے؟
एक बार मेरी बात सुने, कैमरे वाले कह रहे हैं मेरी तरफ कर, इस तरह आगे लोग बोलना जो कमाल नहीं है। बात करो सरजीत जी के साथ, बात करो अदब के साथ, बात समझाओ और समझो। उधर कैमरे की तरफ मुकर करना, मेरी तरफ वो खिताब आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप इन हजरात की तरफ खात्म हो, इन हजरात की तरफ। मैं कैमरे की तरफ नहीं कर रहा, देखो ना तकलीफ से मनाजरा उर्फ आम में अवाम का जो आपका नाम है उस पे बात है। अब इस पे नहीं है कि लकबे आले बीस क्या है, लफ्ज़ आले बीस क्या है और आपकी तारीफ क्या है। अब हम नहीं इस बात पे जाते अंग्रेज से नाम किसने लाड करवाया, इस बेमार मौजूद नहीं है। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई देखो हम अपने आप को एलिसबल जमात हम कहते हैं, आप हजरात शुरू से अपने आप को ये नहीं कहती आपकी तारीफ है, इससे मुनाज़रा कर लेते हैं। इस बहस को ना छेड़ो, ये जो बात है उसको छेड़ो। आप नाम अपना आराज करवाने वाले, आप अपने आप को देवबंदी अंधी कराते हैं, सब सारा जश्न मनाते हैं और हमें इल्जाम देते हैं कि आपने देर से नाम आराज करवाया। आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, हेलो मैंने कहा था ये बोलेगा, मैंने कहा था ये बोलेगा, मैंने कहा था ये बोलेगा ये क्यों बोल रहा है? अब ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा, आज ऐसा नहीं होगा। क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना, बोलने बात कर रहे हैं, कौन बात करेगा, बोलूँ मैं बात कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता अभी लिख लेते हैं लोग, अभी लिख लेते हैं मुनाजरे में अभी मैं बात करता हूँ, आप बोल के दिखाना। अभी तो मुनाजरा हो ही नहीं रहा, अभी की बात है, इस वजह से हम तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मसला हल हो गया है, कारिका मान रहे जी साबत है, यानी कि रफा जैन साबत है, हम तो रफा जैन के लिए आए, क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं हूँ मैं दोनों पार्टी शाह साहब ने कहा था कि रफा जैन अगर कारिका मान रहे हैं, इसका हमेशा होना सुन्नत होना और बात है। अभी बात मेरे सुनो, ये सब बात पे शुरू बात हुई थी ना, बात नासिर की और मेरी हुई थी। ये अपने तनकीद करते थे रफुल जदैन से, इनसे फिर मेरी बात हुई, कहने लगा जी मैं मानता हूँ पहले थी अब मनसूख हो गई। सर मैंने कहा मनसूख होने की दलील आप पेश कर दें, बस ये दो तो कारी साहब फरमा रहे हैं कि 28 मरतबा साबित है, फिर तो साबित है, रोज हाँ जी ये नहीं करते, हमें इनका या उनका नहीं है, हमें साबित से था, साबित 28 बार है, सारा मेरे भाई बुखारी शरीफ में दीजा नहीं बात में जूतों से मैंने नमाज पढ़ी साबित है, आप शुरू कर लीजिए आज से। आप चुप करें, वो बोले मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। आवाम में आप एक फिरका तहरीक मोहम्मदी वाले जूतों से नमाज पढ़ते हैं, तो आपने शोर मचाया कि आप चुप करें, अब ये हो रहे हैं तो आप बात सुने जी। देखिए मैं तो इस्लाह के लिए आया हूँ, मुझे मौलाना नवाज साहब आप समझे
हमारे भाई को समझने के लिए बैठे हैं। अब दरमियान में बोलेंगे नहीं। आपकी मर्जी आप क्या हो जाए, आपकी मर्जी आप मर्जी हो जाए, हमें तो कोई कदर नहीं। लेकिन आप हिदायत पे आएंगे, आपका अपना होगा, आप गुनाह होंगे, आपका अपना नुकसान है, हमें ऐसे कोई नहीं है। चुप करे, चुप करे, चुप करे, आप चुप करे, आप चुप करे, ये अदल की बात सुनो। उस भाई ने कहा है कि मुझे हदीस रसूल समझ आई है, ये कह रहे हैं कि आप निर्दयी हो जाए, आप नहीं हो जाए, उसको हदीस रसूल उसने कहा है समझ आई है, आप यही आपके बड़ों की बात है, यही बड़ों की बात है। कहते हैं कि उसको हदीस रसूल भाई को समझ आई है, उसने कहा निर्दयी हो जाए। एक आम आदमी के सामने बुखला जब किसी भाई को बात समझ आती है आप बोले हमें चुप करना शर्त है मजलिस के अंदर मुनाज़र और सदर मुनाज़र के अलावा कोई और बोलेगा तो उस पुलिस वाले की शिकस्त हो। ठीक होगी। अगर जो भी बात गलत है मुझे बता दीजिए। ठीक है। बात का पतंग नहीं बनाना चाहिए। मैंने तो देखो उन्होंने यूँ कहा, मुझे समझ आ गई। मैंने कहा भाई देखो आपकी मर्जी में जाना चाहते हो, हिदायत करना चाहते हो, आओ। गुमराह होना चाहते हो, वो जब हमारा क्या नुकसान है? आप उसको बात अल्लाह का शुक्र मौजूद है, भागना चाहते हैं, दूसरी तरह मौजूद लेके जाना बुखारी की हदीस आपने कहा है, बुखारी की हदीस कहा है आपने, बुखारी की हदीस को आप कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, ये आपके चुप रहो, नहीं करेगा तो बात कर जाएगा। अल्लाह की रहमत करेगा, आपको पहले चला हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहाना नहीं हूँ, मैंने कहा मेरे को आदमी करे। आप जब एक आदमी को हदीस रसूल समझ आ रही है, ये तो आप पूरे मुल्क में आपको पता चलेगा कि मौलाना नवाज साहब की गुफ्तगू के दौरान एक आदमी को हदीस रसूल समझ आ गई। अल्लाह का शुक्र है। पेश करेंगे अगली शब्द बोली है कि भाई देखो अब फिर बहुत बातें मैंने कहा कि देखो ज्ञान भाई कहते हैं कि हमारे दो उसूल हैं, कुरान और हदीस। इसलिए जो हदीस पढ़ेंगे उसका सही होना कुरान हदीस से पेश करेंगे, हमारी हदीस का ज़ईफ होना ये भी कुरान और हदीस से पेश करेंगे। ये शब्द बोले इसलिए कि आपने कहा है कि आने हदीस से दो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो उसूल हैं, कुरान और हदीस। इजमा और कियास कुरान और हदीस से ही साबित है, हम करेंगे। जो चीज कुरान हदीस से ही साबित है, जो चीज नहीं आप बोले, आप फिर बोले बात सुने ना सुने। मैंने क्या कहा, असल क्या है कुरान हदीस है, असल क्या है, असल क्या है कुरान हदीस। और जो कुछ कुरान हदीस से साबित है उसको आप नहीं मानते, जो कुछ कुरान हदीस से साबित है उसको आप नहीं मानते। मेरे पास किताब है आपके ये दलाल की बात आप क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि आप गलत बात करेंगे, हम गलत करेंगे, अपने उसूल से फिर गए नहीं। हमारा यही उसूल है, सुन्नत कुरान और हदीस। जो कुछ कुरान हदीस से साबित होगा अल्लाह के नबी साबित करेंगे जी, हदीस का सही अल्लाह के नबी अल्लाह अकबर कबीरा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को साबित करने के लिए रसूलुल्लाह की हदीस को साबित, आप लोगों देखो हाथ देखो रसूलुल्लाह की हदीस को मैं आज दूसरी बातें लोगों आज सुन लो, मेरे बात सुन लो, ये हदीस रसूल को साबित करने के लिए क्या अल्फाज क्या है।
जिस को भी हदीस कहा जाएगा, हदीस किताबों में लिखी है वो काबरे अमल। एक मिनट इन्होंने कहा कि देखो इन्होंने हदीस में क्यों कहा है, क्या जो भी हदीस किताबों में हदीस लिखी है वो काबरे अमल। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही वो भी किसने सही कहा? हदीस है। सही किसने कहा? हाँ, आप ये तरफ आप लाना चाहते हैं ना कि आपकी गलत फहमी है। मैं ये सारी आपकी चलाकी आपके घर से निकल कर आया हूँ, मैं जानता हूँ। आप मत इस तरफ लेकर आए, मैं आपके घर से निकल कर आया हूँ। करें और बात करें, इस तरफ ना लेके आए, इस तरफ ना बात लेकर आए। बात लोगों को समझने की, बात लोगों को समझाने की। बात किसी की बेटी को और आदमी नहीं बोलेगा, मोर्चा बोले ना। किसको बोला? तारीफ कुछ भी कर सकते हैं, तारीफ कोई भी। अब बात ये है, क्या हो गया? पहले एक बात पे अड़ गए। भाई मतलब की बात है, ये तो मतलब ठीक है, अभी उससे पहले छोड़ डालना जायज है। शोर को तो हम खुद समझ में हमारे आई नहीं ना। समझा दिया, इसलिए आप बात आगे चलने दे, आप हजरात नहीं बोले, ये दो मतलब आपने खिलाफवर्जी की है। अभी आप नहीं बोलेंगे, अभी आप नहीं बोले, आप नहीं बोले भाईजान, आप नहीं बोले, नहीं है। बात ये है, ये कहते हैं हम कुरान हदीस पे चलते हैं, जो अल्लाह फरमा रहे हैं, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब हदीस का सही होना, सही होना, ये जो हदीस की किस्में हैं, ये अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाई। इसके लिए लामहल्ला तौर पर हम उम्मतियों के सवाल पर एतमाद करना पड़ेगा। अगर हम एतमाद करें, हम तो निकल गए शरीयत से बाहर, ये खुद करते रहें जिस मामले के अंदर, हम नहीं करने देंगे। आपका दावा कुरान हदीस, बस कुरान हदीस के अंदर रहना है और कुरान और हदीस ही से आपने साबित करना है कि हदीस सही है, सही है, और इस मसले के ऊपर ये जो है ये फलाना है, आपने इससे बात ही नहीं करना। अब देखिए, एक मिनट, आपकी बात का जवाब आपका इशारा और आपका इज़हार है कि हदीस रसूल को समझने के लिए आप उम्मतियों के दरवाजे पे ले जाते हैं, इमामों के दरवाजे पे ले जाते हैं। हम ऐसी भी नहीं कर सकते, अल्लाह की हदीस को इमामों के दरवाजे पे नहीं ले जाते। हमारे लिए इमाम है, अल्लाह के रसूल उसका सही होना भी नहीं करो, शुरू से उम्मत का एक मुसलमान असूल करा आ रहा है। आज लोग से मुताबिक हो रहे हैं कि हदीस रसूल को समझने की शराब क्या है, अस्मा रिजाल के इल्म क्या है। आप उसके इनकारी हुए बैठे हैं। आप खुद मामले के दरवाजे पर जा रहे हो और खुद उसको पेश कर रहे हो, अपनी बात में ज्यादा मौना तो कह रहे हो और मत मारा सफल खुद समझने के लिए दरवाजे पर जा रहे हो कि अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। अब अल्लाह के बंदे आप परेशान हो रहे हैं, हमको एक बात ये बनाया बताऊं वाला इनको तो बताया। हाँ, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? हम कुरान की तफसीर भी समझ नहीं करते। कुरान की तफसीर, हमारा अकीदा ईमान ये है, कुरान की तफसीर वो होगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान की तफसीर वो होगी जो सहाबा ने समझे डायरेक्ट मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपनी तरफ से तर्जमा तफसीर में ख्यानते नहीं किया करते। अब देखो, ये इसी शराइत से सारा करना चाहते हैं। अब मैंने जब कोई बात कही थी, अगर तो कबूल नहीं करते तो ये शर्त नहीं होना चाहिए। जी क्यों नहीं कबूल? मैंने तो कहा है, मैंने कहा है जो कुछ कुरान हदीस से साबित है आप उसको मान लें। ठीक है, आप हदीस का सही होना, कुरान हदीस से जो कुछ साबित होगा, हदीस का साबित सही होना, कुरान हदीस में जो कुछ है उसको आप मानते हैं ना, जो कुछ कुरान हदीस से साबित। जो मैं बात कह रहा हूँ उसको आप मानते नहीं, इसलिए तो आपसे बात मनवाने के लिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अरे भाई जो कुछ कुरान हदीस से साबित होगा उसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यार हम तो बिल्कुल मानेंगे, लेकिन सही होना, सही होना। हम यही कह रहे हैं कि अगर इजमा और कियास हम कुरान हदीस से ही साबित करें तो आपकी इकरार क्या है? ठीक है, आपने फिर हदीस के सही होने पर इजमा पेश कर देंगे। किसका इजमा? किसका इजमा? ये भी आप अपने जो है अकादरीन की इबारत की रोशनी में मुझसे बात करें। आप तहरीर में हाँ नहीं, क्योंकि आप इनको समझे नहीं, आपके लिए तो हदीस रसूल को रद्द करना कोई बात नहीं। जी नहीं है,
अस्तगफिरुल्लाह अब आपने कहा आप करते हो, अब मैं कहूँगा आप कुरान में तारीफ करते हो, आप हदीस में तारीफ करते हो, बात करेगी ना। आप अब देखो, आप अखलाक के दायरे में रह के ये बात अखलाकी नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। किसी इंसान को गिदड़ कहना ये बात इखलाकी नहीं है। आपने पहले मुझे आपने पहले क्या कहा? आपने रिकॉर्डिंग सुनाइए, आपने क्या कहा है? मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जाऊँगा तो क्या होगा, आपने कही ये बातें सुनो। मैंने कहा इंतजार कौन से रही है? अभी आप इंतजार कौन से फिर आप बोले वही बहुत बोल रहे हैं ना, बात शुरू करें। ये बोले आप गर्म हो ये काम है लेकिन इखलास के लिए आए हैं, हमें असल बात का बस हमने निचोड़ कहते हैं, प्यार से बात और अगर इस तरह कहेंगे हमने उठ के चले जाना, क्योंकि हमारा जो है ना अब ये मुकाबला फिर शुरू हो गया, देखो फिर मतलब शुरू हो गया। आपस में बात कर रहे हो यार वो दोनों भी कर रहे हैं आपस में, ये भाई कर रहा है, उसने नहीं कर रहा है। ये क्यों है इस तरह, मुझे आप भाई बताएं क्यों है इस तरह, क्यों है ऐसे? क्यों बता जाएगा? और आप बुलाया हुआ तो आप इस दोनों मिलकर नारे लगाओ, ऊंची बात से खड़े हो जाओ। आपको बुलाया हुआ तो आप खुद लगा रहे हैं, मैं मुनाजर हूँ, आप ही मुनाजर बन के ये शर्त तय है, भाई उसके खिलाफ फिर खिलाफवर्जी कर रहे हो। हाँ जी, खिलाफवर्जी है, कितना मतलब अभी अभी फिर नोट करना, जो आपकी बारी तो मैं देखें अभी फिर नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस कबल फिक्र नहीं है। आप उसको आ कहते हैं इस तरफ करो, फिर आप भाई ये देखो, किराएदार कही जाती है, सराहता में कही जाती है। अभी देखो मौजूद चुके, असल बात क्या है, असल जो इख्तिलाफ है हमारा वो इख्तिलाफ है नमाज में लफ्ज़ ज़हन का सबूत और तमाम और तर्क। देखो ये क्या है? देखो ये क्या है? हमारा आपसे इख्तिलाफ है, एक सबूत में नहीं है, तमाम में है। आपने वो जिससे पढ़नी है जो इसके तमाम पे तलाश करेंगे। नबी पास एक मिनट बात को सुन ले, बात को पूरी सुन ले, हौसला करेगा। नबी आपने हदीस ऐसी पढ़नी है जिसमें इस बात का करा हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल के मुकद्दर रफ़ा जान फरमाते रहे और कोई नमाज भी रफ़ा जान के बगैर नहीं पढ़ी। ठीक है, आपने इस पे डिस्कस करनी है और हमने डिस्कस करनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम नमाज से डिस्कस फरमा रहे, रफ़ा जान का नहीं है। अब हाँ, अब देखो आपकी किताब छपी है मजमुआ मुकालात पर तनक़ीद तहक़ीक़ की जगह, उसमें लिखा है कि देवबंदियों की नमाज नहीं होती। वजह क्या? कहते हैं रफ़ा जान फर्ज है, ये रफ़ा जान नहीं करते इनकी नमाज नहीं होती। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु नमाज के दिन का जान फरमाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में शान फरमाएं, सहाबा किराम नमाज के दिन का जान फरमाएं, साहबी तबई नमाज के दिन का जान फरमाएं। अब अगर रुकू का रफ़ा जान नहीं है तो गौर करने की बात अभी क्यों नहीं है? इसलिए हम सच साबित करेंगे, आपने जवाब साबित करना जी। आप देखें, गुजारिश ये है मोहतरम मौलाना नवाज साहब, अब आप एक बार फिर अपनी गुफ्तगू से फिर रहे हैं, मौजू से फिरने की ये मौजूद कहाँ भी नहीं भाई, नहीं गुजारिश सुन लें, हौसले से मेरी भी सुन लें, बहस क्या है? हौसले से मेरी भी सुन लें, मैं आपकी सुन ले तो आप सुन ले, मेरी भी सुन लेना, हौसला करें। मौलाना नवाज साहब हौसला करें, मोहतरम मौलाना नवाज साहब सबक सुन लें, मेरी बात तो सुन लें, गुजारिश सुन लें। अल्लाह मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अभी तक आपने जो हमारा दावा था उसके मुताबिक आपने जवाब दावा तो दिया नहीं। अच्छा, उसके बाद अब आप अपनी मर्जी की अगली बात कर रहे हैं कि जी फलां का जवाब साबित करेंगे, हम भी ये कह सकते हैं, हम भी कहेंगे कि पहले ही फिर बोल रहे हैं, आप किस तरह का फिर बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। बोलते आप किस तरह का लिख के दूँ गुजारिश ये है, मैं गुजारिश सुन लें, मेरी बात तो सुन लें।
اگر آپ پہلی تکبیر جو کرتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ہم اس کے لیے دلیل مانگیں گے دوام کہ آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک آپ پہلی تکبیر تحریمہ کا دوام ثابت کریں. دیکھو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم آپ سے اس کو دلیل مانگیں گے. ابھی اس سے پہلے ان حضرات نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اجماع امت بھی دلیل ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ ہم اس کو اجماع امت پیش کرتے ہیں. آپ اس کو مانیں گے؟ سنیں بات اجماع امت آپ رکوع کے رفع چاہتے اجماع امت پیش کرتے، ہم شروع نماز کے رفع چاہتے اجماع امت پیش کرتے. سن لیں، اجماع امت کا پہلے آپ فیصلہ تو کریں. آپ کے یہاں اجماع امت کا حاصل ہو جاتا ہے. آپ بتا دیں کسی آپ کو اعتراض کیا ہے؟ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ اجماع امت بقول آپ کے بزبان آپ کے آپ کی زبان کیا ہے؟ آپ کی زبان بولنے میں ہمیں تو قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث ہماری دعوت ہمارا باتوں آپ نے تو حدیث رسول کہتے ہیں، حدیث رسول ثابت کریں. آپ کس سے ثابت کریں؟ قرآن حدیث سے. آپ دیکھیں قرآن میں ایک بار نہیں بار رسول اللہ کی اطاعت کرو. اب یہ قرآن کی واضح دلائل ہونے براہین ہونے کے باوجود کیا کریں کہ حدیث رسول کو آپ قرآن حدیث سے ثابت کریں. اب دیکھو نبی اسلام کی بات کا بھائیو قرآن میں آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں آیا تو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث رسول کو آپ ثابت کیسے کریں؟ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. میں ابھی حوالے پڑھنے لگا تھا، پھر میں چھوڑ دی. میں کہیں گے دیکھو محترم آپ شوق پورا کر لیں، خوشی سے پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے آپ کے یہاں بات کہے تو وہ حجت نہیں. ایک کتاب ہے، کتاب کا نام طریق محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اب دیکھو اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے تعجب ہے کہ جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو اس دین والے آج ایک امت کی رائے کو دلیل سمجھ لیں. صفحہ نمبر 59. آپ میں دیکھو اور میری بات حوصلہ کرو حوصلہ کرو. ابھی میں اس لیے پڑھتا نہیں تھا، آپ نے چھوڑ کرنا ہے. اس لیے چھوڑ کرنا ہے کہ جناب آپ کی بات پیش کریں گے پھر آپ جھگڑا بنائیں گے، پھر جھگڑا ہوگا. پھر مجھے پتہ ہے آپ کی قادرین کی بارات ایسی ایسی پیش کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بارات پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، ابھی شرائط ہے. جب آپ بات شرائط نہیں آپ نہیں مانیں گے میں حوالہ دے دوں گا. رحمت کی جوڑی مانیں میں تو مان رہا ہوں. آپ سے بات آتا یہ ہے کہ نبی قرآن و سنت اگر بغیر وہی کے حجت نہیں جان جاتے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ دین میں نبی کی رائے حجت نہیں ہے کس کی. ہمارا ایمان ہے یہ کیسے فیصلہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہی کے مطابق ہوگی ہے نہیں. آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ نبی کی تو ہر بات وہی ہوتی ہے. یہ میری بات جی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ہوتا کیا پہلے آپ نے کیا کہا؟ پہلے کیا ابھی پہلے قرآن کی بات ہو رہی تھی، ابھی آگے لے کر آگے ابھی چل رہی ہے. دیکھو آخری شرط چل رہی ہے. میں نے کہا تھا آپ نے خود بھی اس بات کو مانا ہے کہ اجماع کس کا ابزبان آپ کی. میں کہتا ہوں جب آپ نے خود اجماع کو دلیل مان لیا، آپ نے خود کہا جی قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اجماع بھی دلیل ہے، ریکارڈنگ موجود ہے. اب جب ہم نے یہ بات کہہ دی آپ نے مان لی. اب آپ زبان آپ کے بزبان آپ کی میری زبان نہ بولے، اپنی زبان بولے. آپ کی زبان کیا ہے؟ اجماع ایک میری بات پوری ہو، میری بات کو پورا ہو رہے تھے، میری بات کو پورا ہو رہے تھے. یہ دیکھیے یہ کتاب آپ اگر آپ نے شاید کی کتاب اجماع امام منظر رحمۃ اللہ علیہ کی افضل عطری صاحب نے اس کی نظر ثانی کیا. ابو القاسم عبد العظیم صاحب نے جو ہے دیکھو اس کا ترجمہ وغیرہ کیا ہے. ابھی ایک شرط کی بات ہو رہی ہے، شرط کی بات ہو رہی ہے، باقی شرط کی اجماع کی بات ہو رہی ہے. کیا کرنا ہے ثابت کیا کرنا ہے. بہت مٹن پڑا ہے آپ شوق پورا کر لینا کر لے شریعت ادا کر لے. اللہ کے بندے شریعت پہ تو آ جائیں. آپ کی شریعت مان لی ہے نا؟ مان لی ہے جی ہم کہتے ہیں کہ شروع نماز کا ہیں پوری امت کے دماغ پر ثابت ہے. اور اس کے شروع میں خود جو ہے اہل نے خود لکھا ہے کہ اب جس نقل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اب پوری امت شروع نماز میں رفع جان کرتی کہ نہیں کرتی ہے نا؟ اب یہ گمراہی کرو. یہ حدیث شروع سے ہم نے اب ایک میری بات پوری ہونے میں حوصلہ کریں. آپ بات نہیں بول رہے
नबी आप ही ना बोलना, पाक आप ही मेरे साथ मेरा बोलना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं सकती। अब इत्तफाकी रफ़ाई कहना है खुशनू नमाज का पूरी मुल्क पे इकट्ठी है। किताबुल इजमा के अंदर इमाम मंजर रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की मैंने हदीस भी सुना दी है कि उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। आप हदीस की रोशनी में शुरू नमाज का रफ़ाई कहना इसमें कोई झगड़ा नहीं है। आपकी बात अब किताबुल इजमा में हम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ये देखो ये किताब है जी, ये सफा नंबर 25 किताबुल इजमा की, इसमें कहा गया जी इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त रफ़अ यदैन किया करते थे। इजमा है, तर्जुमा भी अहले इस्लाम ने दिया है। तो अब क्या है, इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त रफ़अ यदैन किया करते थे। अब ये रफ़अ यदैन तो ज़ेर बहस नहीं रहा ना, मसला हल हो गया ना। अब अगला मसला जो निज़ाई है वो क्या है, रुकू का रफ़अ यदैन है कि उसमें उम्मत का इजमा है कि नहीं। आप उम्मत का इजमा देखो, अगर इसमें उम्मत का इजमा होता इमाम मुंज़र रहमतुल्लाह अलैह किताब इजमा में इसको पेश करते हैं। पूरी किताब किताब इजमा के अंदर क्योंकि रफ़अ यदैन के इजमा को पेश नहीं किया। मालूम हुआ कि रुकू का रफ़अ यदैन इख्तिलाफी है, शुरू नमाज का रफ़अ यदैन इख्तिलाफी नहीं है। इसलिए अब ये मसला हल हो गया। इसलिए आप बात सुन लेना, आप बात सुन ले, आपको इतना शौक है तो घंटा घंटे दान नहीं करना चाहिए। आप बात सुन लेना, शराब में इतनी मुझे क्या आप सुन ले, बात सुन ले, आप बात सुन ले। हमारा दावा यही था, हमारा दावा कि नबी अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह की सुन्नत, नबी इस्लाम के सहाबा की बात को आप उजर नहीं मानते, रसूलुल्लाह की सुन्नत को उजर नहीं मानते। दिखाएंगे ना, आपने तभी दलाल पढ़े शुरू कर दिए। जब मौका आएगा अल्लाह की रहमत से आपको रोशन हमारे दिल पर लगाएंगे। आपकी गलत नहीं है, हमने सहाबा को आज नहीं मानते। आज आपकी बातें बनी हुई है, हमने हमारा दावा भी किया। हमारा दावा ये है, फिर बोल रहे हैं मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कितनी देर की बात सुनी है, आपने कितनी देर की फिर बोल पड़ते आपको इंशाल्लाह आज तुम्हारा भी आपको भी नहीं होगा। मैं हदीस कुरान की बात कर रहा हूँ, नहीं है। मैं अपना दावा पेश कर रहा हूँ कि हमारा दावा भी कुरान के मुताबिक है, हमारे तो दलाल भी यही है। फिर बोल रहे हैं क्यों आप क्यों इसलिए कर रहा हूँ, जब आप करते हैं मैं सुनता हूँ। इतने दिल गुर्दा होना चाहिए तो फिर सामने मैदान में आना चाहिए। दिल गुर्दे की बात होती है मौलाना, अगर आप में दिल गुर्दा है तो सुने। मैं आपकी बात सुनता हूँ, आप क्यों नहीं सुनते? मैंने बात की है, आप बात सुने मेरे भाई। आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, मेरे शायद बात करेंगे। हमने दावा पेश किया ना कि रसूलुल्लाह की सुन्नत अमले साहब है। अब अमले साहबा का इनकार कर दे, रसूलुल्लाह की सुन्नत का इनकार कर दे, आपने जवाब दावा लिखा ही नहीं है, जवाब दावा लिखा ही नहीं है। मैं रफ़अ यदैन शुरू कर दूंगा, आप फला साबित करते आपका रफ़अ यदैन तमाम सहाबा करते थे। आपका रफ़अ यदैन आप साबित करते हैं, तमाम सहाबा करते थे। हाँ, आप साबित करते हैं, तमाम सहाबा रफ़अ यदैन आप वाला करते थे जो आप करते हैं। मैं शुरू कर दूंगा, बढ़के मारने से कुछ नहीं होगा। आप नहीं करते थे ये वाला भाई अबू बकर साहब नहीं करते थे। अभी बात होगी, आप होगी बात करें। एक मिनट भाई, बहुत दूर के हैं। बात शुरू कर लें। आप भी बहुत दूर से हैं। पहले आप बात करें। बहुत दूर से हैं। हम यहीं के रहने वाले। आप तक यहाँ बैठ के आपको आज नहीं लगता दूर आना इसलिए नहीं, बात सुनें। शरायत की बात हो रही है, दलाइल की बात नहीं हो रही। आप तरीके मोहम्मदी की बात करते हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मसाइल जो बताए हैं, दीगर मसाइल जो बताए हैं, उनको भी आप पेश करें। दूसरी बात, अगर आप काबिल के दलाइल पेश करते हैं ना, तो आप एक मिनट बात आपने बोल लगाया, अभी वो बोल लगाने के इकट्ठे हो गए, मुनाज़ा शुरू करना तो करो। अगर भागना तो भाग जाओ, अगर मुनाज़ा करना शुरू करो, मुनाज़ा शुरू करना है तो शुरू करो। अभी वो बोल लगाने के लिए इकट्ठे हो गए, आप बैठ जाए, आप पहले क्यों आपकी बात सुना है,
आपकी बात आपकी बात है ठीक है, खड़े रहो फिर, खड़े होके बात करते हैं। ठीक है, खड़े होके बात करते हैं। आपके समझ में आ रहा है, मैं काम कर नहीं एक आता, बात आप बोलते हैं। एक बात एक बात नहीं, आप बात शुरू करो। ये बात तेरा कोई शुरू नमाज ये वाकियत पे इतना है। यहाँ सारे रकम बयान के आप तमाम पे भी मैंने शब्द किसी को शब्द तो कबूल नहीं कर रहे। अल्लाह की कसम हमारा इनसे झगड़ा सबूत पे नहीं है, इनसे झगड़ा दवाम पे है। सुन्नत वो होती है जिस पे दवाम हो। अगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इसने कहा तमाम सहाबा किराम से, अगर ये तमाम सहाबा किराम से साबित कर दे और इजमाए उम्मत पेश कर दे, मैं रफ़ल शुरू भी कर कुछ कुछ भी लिख देता हूँ। बात शुरू करते हैं। अहादीस का सही और जरूरी है। मैंने इस शब्द पर उसको आपने माना नहीं। मैं जो भी दलील पेश करूंगा उसको सही साबित करूंगा। आप पहले बात तो सुनने की कोशिश आप करें। एक मिनट मेरे भाई, मैंने आपने दलाल क्यों दिए हैं? आपने दलाल क्यों दिए हैं? एक बात सुने, ये बात इससे कौन करना है? ये बात नहीं है, मौजूद है ये होने पर जाने को मैं मोदी से बाहर नहीं गया, मैंने निकाह के बदले नहीं छेड़ा, मैं निकाह के बदले छेड़ूंगा ना, मैं निकाह के बदले छेड़ूंगा, आपको परेशानी होगी। इसलिए आपको कबूल है, आप जितने चाहे गिरा दें आपकी गर्म के अंदर, आपको कबूल है, आपकी गर्म शुरू करते हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप दबाव साबित करेंगे, मैं इसकी साबित करेंगे क्या आप लोगों ने निकाह जब तक भाई जान फरमाया साबित करेंगे? आप बात करें, आप उनकी बात पे जवाब किससे बात करें? मौलाना जवाब अपनी बात पुराना शुरू करना है। आप कब शुरू करें? शुरू करते हैं। वक्त जाना करें, मैं वक्त नहीं चाहता। आपने वो तरीका पेश किया ना, क्यों पेश किया? जिम्मेदी है ये अफादल की बात करते हैं, ठीक है? आप बात जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल। तकरीर जिम्मेदी है। अब इम्तिहान जानते हैं अगर ये पेश करेंगे सुन तो ले। इसलिए आप हम आपकी बात सुनते हैं, अखलाक की दायरे में हमेशा ऐसे ही होता है। आपने मोहतरम भाई, आप जानते हैं कि शराइत तय हो रही हैं, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, लिहाजा जब मुनाजरा शुरू नहीं हुआ ऐरे गैरे दलाइल पेश करने का किसी को कोई हक नहीं। इन्होंने ये काम शुरू किया है। दीगर किताबें पहले खुद कहते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हमारे नज़दीक, और किताबें कुरान और हदीस के अलावा दिखा रहे हैं। मैं इन्होंने किताब दिखाई है, उसके जवाब में हम ये किताब दिखाने लगे। जब मुनाजरा असल शुरू होगा फिर हदीसी दलाइल भी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अमल भी पेश होगा। इनकी दलील जो है, जो बुनियादी तौर पर जैसा कि तकरीर तिरमिज़ी के अंदर ये बात लिखी है, वो कहते हैं तर्क रफ़े जान की सबसे कवी दलील हदीस इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल बदरुल मुनीर के अंदर इस पर
साहिब किताब ने ये बात नकल किया, इत्तफाकू अला तज़हीदी। एक मिनट मेरी बात में नहीं नंबर 3 सफा नंबर 493 कहते हैं जी वाक़ई कालंदा है कि खिलाफ या शरीक रखा के मौका वाला बिलाल करते हैं बुखारी ये ना मुस्लिम का लगा है हदीस और वो बना काल परिणाम करना ताकि मुतदरा कि अन्ना मुस्लिम इस्तेजा भी बता कर वो भी सलाह वकाल नववी في خلاصة اتفقوا على تضعيف هذا الحديث وأنكر ولا ترمذي تحسينه कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत के मुताल्लिक उन्होंने लिखा है कि इत्तफाकू अला तज़हीदी और अब्दुल्लाह बिन किताब तो पूरा और कहते हैं जो इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन कहा है, मुहद्दिसीन ने इसका इनकार किया है। दूसरी बात ये पढ़ें, इमाम तिरमिज़ी मुहद्दिस नहीं है। एक मिनट। दूसरा, इसके मुकाबले में हमारी रिवायत में सबसे अव्वल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है। ये तकरीर तिरमिज़ी हनफी है, मुक़ल्लिद है। क्या कहता है? सफ़ा नंबर 401 तकरीर तिरमिज़ी है, सफ़ा नंबर 401 है। कहते हैं वाक़या ये है कि रफ़ुल यदैन के बारे में सबसे कभी रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की है और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। आपके बुजुर्ग ने पढ़ाने मान दिया, आप क्यों नहीं मानते? आप गलती बात करते हैं। मुनाज़रे का मैदान सजाएं, फिर दलाइल पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला के बगल से दौड़ना भी चाहिए तो मेरा नाम बता देना। क्या करें? नहीं, आपने मैंने आपको बात करी कि जवाब मिलेगा, अब जवाब मिलेगा। मैंने हमारा कहना पहले होगा कि ये जो आप हमारा दोगे उसका जवाब देंगे, वो ये हमारा देंगे। अब ये जो आपने पढ़ा इसका जवाब कितना है? आप किसी बात पे मानते हैं अभी जवाब सुनो। वो मौलाना साहब कौन झूठ बोल रहे हैं? ये देखो एक मिनट जवाब दूंगा फिर चेक करूंगा। आप ना वो हवाला ना पढ़ते, आप मेरी बात मेरी बात मुनाज़रा नहीं होएगा, बस भाई नहीं होएगा, मुनाज़रा नहीं होएगा। आप किसी बात पे आते ही नहीं हो। सबसे पहले आपने झूठ बोल दिया कि वो कह रहे कि मैंने मस्जिद में बैठ नहीं कहा। मुनाज़रा नहीं होएगा। एक भी बात पर यह हमला नहीं हो रहा। कर ले, अभी हमने एक ही बात पर यह हमला नहीं हो रहा। और बता रहे
अभी हिम्मत है तो जवाब दे, हिम्मत है तो जवाब दे। इसका जवाब ये बात जवाब सुन ले। अभी मेरी बात सुने, लेकिन पहला सवाल जवाब देते हैं, अब मेरा सवाल जवाब का सवाल किया है, गलत बात है। एक बात हुई है, उसका जवाब हो गया, मगर मुनाज़रा शुरू करवाइए। आप हज़रात बात को नहीं समझते, बात क्या है। मैंने हवाला पेश किया, उन्होंने बात की, मैंने उसका हवाला पेश किया। आप अगर ये हवाला मैंने गलत पेश किया तो इसके वो हवाला तो इन्होंने हवाला गलत पेश किया, मैं यही बात पेश करने लगा हूँ। आप बात नहीं समझते, आप झूठ का साथ दे रहे हैं, आप जो जवाब सुन रहे हैं बैठ जाओ भाई, अभी जवाब लो है तो ये बात पड़ेगी, जो बात ऐसे ही मुनाजा नहीं करना चाहते, इनका मुनाजा कबूल नहीं है। ये शोर में आपको नहीं पता, ये मुनाजा चाहते हैं। अगर अभी मैंने कहा था ना तलाक की बात नहीं है, तो अगर पूरा करने अब सबसे याद आएंगे ना। एक मिनट बैठ जा। अब एक वाला सबसे ज्यादा रफ़त में मजबूत जो हज़रात ये पेश करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और पेश करते हैं। सबसे पहले आप हज़रात अभी इसे देखना पड़ेगा। फिर वही बात अब फिर आप बहस कर लें, इससे बहस करनी है। अब कुरान हदीस नज़ीर हुसैन देवी साहब इन हज़रात के सबके हज़रात के सबके उस्ताद हैं। अब वो क्या कहते हैं रफ़ाए दैन करना न करना दोनों साबित हैं। इन्होंने कहा ना कि सारे लोग इकट्ठे इस बात के इकट्ठे का दिल ज़ईफ़ है। क्या मतलब है, आपको हदीस नहीं है। अब देखो बात इन्होंने पेश की है कि कोई भी मुहद्दिस इस बात का कायल नहीं है। एक कोई भी मुहद्दिस इस बात का, आपने गौर से सुनी बात, मुहद्दिस कह रहा हूँ, कोई भी मुहद्दिस इस बात का कायल नहीं है। इन्होंने कहा सब इस बात के इकट्ठे का दिल ज़ईफ़ है। अब मैं कहता हूँ कि आपके पापा जिनको शेखुल कुल बिल्कुल कहते हो, तुम सबके उस्ताद हैं, वो कह रहे हैं रफ़ाए दैन करना न करना दोनों साबित है। अब हदीस तो अभी ज़ईफ़ साबित कैसे हो गया, आप मुझे जवाब दो। एक मिनट मेरा जवाब मुकम्मल होने दो। मेरा जवाब आप फिर थोड़ा जल्दी से शौक पूरा कर लो, इस तरह करना दराज नहीं दे क्या ये मोहब्बत नहीं है। ये तुम कहते हो कि सबसे बड़ा ये मोहब्बत है। अब जो तुम कह रहे हो किसी मोहब्बत का देखो लिखा हुआ है जी नज़ीर हुसैन मोहब्बत भी। अगर आप अकादर की बात पेश कर सकते हो, हम भी पेश कर सकते हैं। अब तुम कहते हो मुहद्दिस इस बात पे इकट्ठे हैं कि नहीं सही है, वो कह रहे हैं कि इस पे झगड़ना लड़ाई करना रफ़ाए दैन पे ये जिहाद पर निकालनी है। ये देखो
जिस नंबर 1 है, सफा नंबर 441 है। आपको सवेरे पढ़ के सुनाए, हजरत सवेरे पढ़ के सुनाए। लोग सवेरे पढ़ के दूसरी बात, अभी बैठ जा, भारत का जवाब नहीं दिया, उसका जवाब देना था। मैं जवाब देना उसका जवाब देना, मैं जवाब दे के बैठूंगा, मैं जवाब दे के बैठूंगा। आप बैठो, मैं जवाब दे के बैठूंगा। हौसला तो करो जरा, अभी क्यों परेशान हो? देखो लिखा उलमाए हकानी पर पोशीदा नहीं कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफा कैन करने में लड़ना झगड़ना तासुब और जहारत से खाली नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में रफा कैन करना और ना करना दोनों साबित है और दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं। ये है जी, बिल्कुल जी। अब कहते हैं शायद अब्दुल हक मुहद्दिस ने शरह सफुल सहादा में तरफैन के दलाल बयान करके लिखा है कि दोनों तरीकों को मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। अब ये मैं बात पेश कर रहा हूँ, ये मुहद्दिस है कि नहीं है, ये मुहद्दिस है कि नहीं। फिर अगली बात हजरत एक मिनट में जवाब अब देखो इसमें कहा गया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत पेश करते हैं, हम कहते हैं क़यामत तक आप मेरा भाईजान के दवाम पे एक हदीस पेश नहीं कर सकते, पेश कर देंगे हम भी शुरू कर देते हैं। जोर की नमाज मेरे भाईजान से पेश करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हट धर्म नहीं है, हमारे काबा ने हमें हट धर्म नहीं बनाया। लेकिन बात तो ये है कि खुद आपके शेखुल कुल बिल्कुल लिखते हैं हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक खबर नंबर 444 जी। हिस्सा मुख्तसर रफ़ाए दैन का सबूत और अदम सबूत दोनों पर भी है। इस इख्तिलाफ से वजूब की नबी तो साबित हो सकती है, इसके अदम सुन्नत साबित नहीं होती। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रफ़ाए दैन न करना उसके मुस्तहब होने के मुनाफी नहीं, और हो सकता है कि इब्न उमर ने कभी ख्याल न किया हो तो इस्तिमरार रफ़ाए दैन से उन्होंने इनकार किया हो और उससे ज़्यादा नफ़ी वजूब और रफ़ा तो साबित हो सकती है। अदम सुन्नत नहीं, रफ़ाए दैन के इस बात की मंदरजा वाला तकरीर से बखूबी वाज़ेह हो गया कि हदीस मुतवातिर है। अगर फिरोजबाजी की बात की है, अब मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैंने खुद कहा कि इस्तिमरार की नफ़ी हो सकती है हमेशगी की जगह, तो हमेशगी तक हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप हमेशगी के हदीस पेश करते हैं, ठीक है, हदीस सही हो, आपके अकाबर ने मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ या मौजू न कहा हो, आपने रफ़ाए दैन पे 10 मरतबा का रफ़ाए दैन हो, शुरू का हो, तीसरी रकअत के खड़े होने का हो, हांजिर को जाकर को से उठते हुए हमेशगी और रफ़ाए दैन भी आप पेश कर दी। ये जो किताब आपने पेश की है इसमें मौक़िफ़ किसका नकल किया है आपने? ये किताब है अल बदरुल मुनीर का जो अहला आपने पेश किया है, आप मुझे बताएं इसमें लिखा है फी खुलासा की है। आपने किताब का हवाला नहीं दिया, वो किताब कैसी है, मोतबर है गैर मोतबर है? आप मुझे बताओ, आपका शेखुल कुल कह रहे हैं दोनों तरह साबित है, और ये कौन सा खुलासा है हमें तो बताओ, कौन सा खुलासा है? मौलाना हमें जवाब देना है। आप ये बताओ कि आपने तकलीफ की कि नहीं की, अंधी तकलीफ, तो खुलासा वाला कौन है? मुझे उसका नाम भी बताना है, उसका एड्रेस भी बताना है, वो कहाँ पैदा हुआ और वो कौन था। उसने कहा कि इसकी जो है वो तज़ईफ़ पे जो है वो सारे लोग इकट्ठे हैं। अब मैं कहता हूँ आप खुलासा की वजाहत करें, अगर मैं झूठ के बार बंद करें, हम इंशाल्लाह अभी दलाल पेश करेंगे, आप मुनाज़रा शुरू करें, अभी इस पे बहस न करें। हमारा झगड़ा रफ़ाए दैन के करने, रफ़ाए दैन के सबूत उसके जवाब पे है, हमें इसी पे हदीस को केड़ा साबित होता है, ऐसे क्या होगा किताब से बड़ा होए लो अन्ना केड़ा साबित होता है। ये देखो यार, ये बात उन्होंने कहा अंधा कहा उन्होंने कहा अब कहते हैं जी मुझे बताओ कि खुलासा क्या है, इस किताब का नाम तीन किताब है, अगर आपने इबारत पूरी पढ़ी होती मेरे ख्याल में आपको समझना जाना चाहिए। बदरुल मुनीर के साहिब कहते हैं वक़ालन नवावी की खुलासती ही, इमाम नवावी अपने कहते हैं हज़रत उनकी तकरीर साबित हो गया कौन करता है, आपने बड़ा लोग है, आपने बड़ा लोग है,
एक मिनट से इमाम नबवी रहमतुल्लाह ये मेरी बात इतनी देर पूरी बात का जवाब दे इतना हौसला भाईजान एक मिनट इस बात का जवाब मैं दूंगा क्यों नाराज है एक मिनट इन्होंने किताब के मुताबिक किया कि आप वजाहत करें ये खुलासा क्या है, किसकी किताब है, क्या मुसन्नफ है, कहाँ रहता है। इमाम नबी रहमतुल्लाह ताला के मुताबिक कोई शख्स जाहिर नहीं है, अगर कोई जाहिर है तो वो इल्म हासिल करे, अपने आप को आलिम और उस्ताद ना कहे बल्कि मौत तक तालिब इल्म की ही का माना अच्छा समझे। इस किताब के अंदर ये वजाहत मौजूद है कि खुलासा किताब इमाम नबी रहमतुल्लाह की है। ये असल किताब है हज़रत किताब नहीं खुलासा किताब इन्होंने दूसरी किताब पेश की इमाम नबवी गैर मुतल्लिक़ इन्होंने मुताला नबविया से वादा पेश किया कि कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का रफ़ैदान ना करना, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का रफ़ैदान ना करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अज़म आप साबित करें, उसको ज़ईफ़ साबित ना करूं, मुझे अहले हदीस कहलवाना अच्छा नहीं लगेगा। आप बात करते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रवायत कितनी किताबों में, मसानी दरमा में, सिहा अरबा में, सुनन अरबा में हज़रत मुनाज़ा शुरू होने तो दलाइल आते पेश करूंगा और सुन जाएंगे। ये आंदोलन कराम देवबंदियों की है। ये कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर के जवाब के लिए नहीं करते शुरू करो यार। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से करने की बजाय नज़ीर हुसैन देव की घबराते हैं जब दलाल की बात आती है, घबराते हैं, बोलते हैं ये है जब दलाल तो ये सीखेंगे। अब शराब तय हुई नहीं है शुरू कर दिए करते हम सुनते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। जब हम एक दलील पेश करते हैं तो चीख पड़ते हैं। हमारी नहीं बात नहीं यार, शराब तय करो आपका एक आपकी गलत फहमी है। आप बाहर हो जाएगा। एक मिनट छोटे भाई है मेन मसले ते आओ वो नहीं आ रहे। 1.5 घंटा का मैं आया करता, मैं मजदूर बंदा है वा, मैं क्या चलो हक से सानू पता लगे। जब दलाल की बात हो तो फिर शोर की बात सुनते हैं। जी शराइत की बात होती है, शराइत के अंदर उन्होंने इज्मा साबित किया था। ये समझ नहीं आ रही, इन्होंने मौत रख के रफीजा की बात शुरू कर दी। वो तो वही तो दावा है। जो हमारा दावा है उसके ऊपर हम दलाल देंगे। आप शरीयत तय करें, इज्मा मानते ना आप खुशी के लिए अपनी जनाब वीडियो बनवाने के लिए दलाल किताब पकड़ खड़े हो जाते हैं। जब हम एक दलील में हम एक किताब पकड़े तो शोर शुरू कर देते हैं। ये तो नहीं बात है, शोर ना करें। अगर हम मुसल्ले कल्बी की आपसे बात करते हैं तो हमारी भी सुने ना। आपकी मदद से नहीं है, मैं इसलिए अल्लाह की रहमत से मुनाजरा एक वादी होता है। मुनाजरा एक वादी होता है। समझने की बात की है और
बेचारे के पल्ले पड़ने दे, कोई बात हो, मजदूर दिहाड़ी उसकी खराब की है, उसको कुरान भी की समझ आने दे, समझ आने दे, अल्लाह को डाल दे। अगर आप सही शुरू करो शुरू करें।